Hi everyone, my name is Ritika Goswami and welcome back to my channel which is RG Explains। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड स्मॉल टॉपिक इन केमिस्ट्री कॉल्ड पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल्स। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइस, ओके, विद एन अपडेट एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज गोइंग टू बी अ लिंक। दैट लिंक इज गोइंग टू बी ऑफ अ गूगल फॉर्म जो कि इस टॉपिक का टेस्ट है, ठीक है। सो वट एवर आई टीच यू इन दिस 14-15 मिनट्स उसका एक स्मॉल 5-6 क्वेश्चंस का टेस्ट है which is there in that Google form, small MCQ test, okay, and you can attempt that test if you'd like. If not, that's also okay. I'm not telling you that you have to attempt it, okay, but I will be correcting that test and will be sending you the reply on your email IDs within a week, because I'd like to take the initiative। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन बहुत ही गलत करा है तो I would like to tell you कि where you're going wrong, okay, with that। So that's what the intention is, and also the second intention also is कि कभी 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 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है काफ़ी stupid है। साइंस में देयर इज नथिंग स्टूपिड, एब्सोल्युटली नथिंग, बट समटाइम्स पीपल थिंक कि यार अ क्वेश्चन लाइक कार्बन की वैलेंसी 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, कार्बन 5 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता। सो पीपल जनरली आर वेरी हेजिटेंट इन आस्किंग सच क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप उस गूगल फॉर्म में यू कैन आस्क देम एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर इफ आई नो, इफ नॉट मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगी, ठीक है। सो दैट्स वॉट दिस अपडेट वॉज। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन click on that link, answer the test, send it to me and I will send you reply you back in within a week, okay। All right, so let's start with today's video which is polarization and Fajans rules। So why the word Fajan, okay, let's discuss this for a while। Well, there was a chemist long back whose name was XYZ and he was having a chocolate fudge cookie, which is what I'm craving right now, and he was thinking hard about what must be a bonds क्या होते होंगे, ठीक है। That is when, because he was having a fudge cookie, he came up with something called fudge। Okay guys, I'm just kidding, I was just making all this up। There was a scientist called K. Fajan who gave these Fajans rules। I was just kidding because I was craving Fajans rules, because why not। So this guy called K. Fajan came up with these rules called Fajans rules। There's no chocolate fudge involved, I'm so sorry, okay। Now on a serious note, I'll start with today's video now। if I tell you to think about what a chemical bond is, तुम्हारे दिमाग में क्या बनता है chemical bond को सोच के? what is something which comes to your mind? I'll tell you what came to my mind and then we can think कि हम लोग alike सोच रहे हैं कि नहीं। So when I used to think about a chemical bond long back, तो मैं ऐसा सोचती थी कि there must be 2 atoms, ठीक है, और उनके बीच में एक physical कोई rod like structure है which is representing the bond between them, okay, और that is what a chemical bond should be, ठीक है, which is connecting basically 2 atoms together। बट गाइज किसी को आज भी अगर ऐसा लग रहा है तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। केमिकल बॉन्ड कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिजिकल, इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन टच और फील, ओके, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या है? द आंसर इज दैट केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट एन अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स बेसिकली विच होल्ड्स देम टुगेदर। तो ऑफकोर्स हम किसी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से ही करते हैं, but that does not mean an actual rod। that is basically representing a attractive force between 2 atoms जो कि उस बॉन्ड का पार्ट है, ओके। मूविंग ऑन, हमने 2 टाइप्स के बॉन्ड को पढ़ा है, समझा है, विच इज द आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर 2 एटम्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, राइट। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कैटायन और प्रॉपर अनायन फॉर्म होता है, ठीक है, प्रॉपर पोल्स फॉर्म होते हैं, प्रॉपर अनायन कैटायन फॉर्म होता है, एंड दैट इज व्हाट एन आयनिक बॉन्ड इज, ओके। वेयर एज कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास देयर इज गोइंग टू बी अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट एक शेयरिंग सॉर्ट ऑफ होती है बिटवीन 2 एटम्स जो इन्वॉल्व हैं। सो वी हैव नोन अबाउट व्हाट इज आयनिक एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो, ओके। नाउ जो फजान्स रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, दे आर गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर द आयनिक बॉन्ड्स। जो भी आयनिक पार्ट है, कोवैलेंट के लिए वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स के लिए हम लोग ये जो आज टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर आयनिक बॉन्ड्स, ओके। नाउ अब हम समझते हैं कि ये क्या है। सो बेसिकली जब एक
आयनिक बॉन्ड बनता है एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड। यहाँ पे एक कटायन होता है जो कि साइज में छोटा होता है। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो कि कटायन साइज में छोटा क्यों होता है। बेसिकली कटायन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे और मतलब जेड जो हमारा न्यूक्लियस था दैट वाज अट्रैक्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर अब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब वो न्यूक्लियस कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे तो ऑफकोर्स साइज छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। तो दैट्स वाई कटायंस आर स्मॉलर इन साइज एंड सिमिलरली अनायंस साइज में बड़े होते हैं बिकॉज नाउ द न्यूक्लियस इज गोइंग टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट वो कम कर पाएगा, दैट इज वाई द साइज इज गोइंग टू बी बिग, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कटायंस और अनायंस का साइज। बट ये हमारा एक परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है। हम ऐसा इमेजिन करें एक परफेक्टली शेप्ड कटायन है, एक परफेक्टली शेप्ड अनायन है, और ऐसा होता होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। बट दिस गाय कॉल्ड के फजान, whose first name I just cannot pronounce, I don't know how much I try, okay, he told us to get real. He said कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Even if we want the world to be perfect, it's not what actually exists. Actually में क्या होता है कि जो हमारा एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो completely एक परफेक्ट शेप में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो कटायन है हमारा, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इट इज़ हैविंग, वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है अनायन के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और उसका जो परफेक्ट शेप था वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ओके। बेसिकली डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ द एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटायन इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन। क्लियर? सो जो दो मेन बातें हमारे के फजान ने हमें बताई थी, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड इज द फादर ऑफ ऑल बॉन्ड्स, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर हर बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड ही क्यों ना हो, स्टिल इट इज गोइंग टू हैव अ कोवैलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में भी होती है पोलराइजेशन, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और जितनी ज़्यादा होती है पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होता है हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स परफेक्ट वर्ल्ड में हमारा आयनिक बॉन्ड परफेक्ट है, बट क्योंकि हमारा वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, दैट इज वाई देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जितनी बढ़ेगी उतना कोवैलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक बॉन्ड में बढ़ेगा, ओके। दैट्स वाई आई टोल्ड कि ये जो टॉपिक है दैट इज ओनली फॉर आयनिक बॉन्ड्स, बिकॉज उसी में हम पोलराइजेशन को समझते हैं, बिकॉज कैटायंस और अनायंस तो वही बनते हैं। क्लियर? ओके, नाउ एज आई ऑलरेडी मैंशनड, ठीक है, कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो बेसिकली एज आई सेड कि हमारे पास एक चीज़ तो है दैट इज कॉल्ड द कैटायन, ठीक है। जो हमारा कैटायन है वो छोटा है साइज में, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और उसका काम क्या है? उसका काम है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उसकी शेप को खराब करना, डिस्टॉर्ट करना, ठीक है। किस हद तक वो कैटायन ये काम कर पा रहा है, ठीक है, हाउ मच गुड इट इज एट इट, ओके, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। यानी कि पोलराइजिंग पावर इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटायन, एनायन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, कैटायन की प्रॉपर्टी होती है पोलराइजिंग पावर। क्लियर? हाउ मच इज इट एबल टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। दूसरी बात होती है पोलराइजेबिलिटी, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है अनायन की, विच मीन्स कितना ज़्यादा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करवा रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इट इज़ हैविंग, वो होती है हमारी पोलराइजेबिलिटी, ओके। सो टू थिंग्स, फर्स्ट इज पोलराइजिंग पावर। तो जब भी हम लोग पोलराइजिंग पावर सुनेंगे वर्ड, दैट वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट द कैटायन, बिकॉज कैटायन की प्रॉपर्टी होती है पोलराइजिंग की, ठीक है। वेराज जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे अनायन तो हम लोग पोलराइजेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, बिकॉज पोलराइजेबल कौन होता है? अनायन होता है। क्लियर? ऑलराइट, अब समझते हैं हमारे पास कुछ पैरामीटर्स जिन पे हमारा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी करती है डिपेंड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, ठीक है। यानी कि कैटायन हमारा जो है वो कितना केपेबल है ऑफ डिस्टॉर्टिंग द शेप ऑफ द एनायन, उस पे किन किन फैक्टर्स पे हमारा पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है वो हम फटाफट से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमारा है पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे कैटायन के ऊपर ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऊपर वो ज़्यादा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो कम अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, विच विल रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ द एनायन, और वही तो हम चाह रहे हैं, है ना, वही तो पोलराइजिंग पावर है बेसिकली। तो अगर मैं Al+3 और Na+ को कंपेयर करूंगी तो इन दोनों में से बोथ आर कैटायंस, बोथ आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, बट हमारा एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर सिर्फ +1 का पॉजिटिव चार्ज है। दैट इज वाई Al+3 इज गोइंग टू बी हैविंग अ हायर पोलराइजिंग पावर एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हमारा है Z इफेक्टिव, बेसिकली, सॉरी आई जस्ट
यानी कि हमारा जो पोलराइजिंग पावर है इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसको हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अब एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उसको एक नहीं, दो नहीं, उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको अट्रैक्ट करना है एक साथ, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है वो होता है उसका जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, विच इज शील्डिंग इफेक्ट, ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उन सब के बारे में वील टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो। सो बेसिकली जितना ज़्यादा हमारा जेड इफेक्टिव होगा या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आसानी से वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। क्योंकि वो अगर अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या वो किसी और के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्या वो डिस्टॉर्ट करेगा किसी की शेप को, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव हैज़ टू बी हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वो ऑफकोर्स बहुत ईजिली किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। दैट इज वाई इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। थर्ड वन इज पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली टू द साइज ऑफ द केटाइन। ऑफकोर्स अगर साइज हमारे केटाइन का छोटा सा होगा विच मीन्स छोटे से एरिया में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मानो मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं एक छोटे से एरिया में डालती हूँ और एक बड़े से एरिया में डालती हूँ। तो छोटे से एरिया में अगर उतना पॉजिटिव चार्ज है इट इज गोइंग टू बी डेंस इनफ, और बहुत जब वो डेंस हो जाएगा तो वो बहुत ईजिली हमारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसकी शेप को खराब करेगा। दैट इज वाई स्मॉलर द साइज द बेटर द पोलराइजिंग पावर। और अगर बड़ा हमारा साइज होगा केटायन का तो उतने ही बड़े एरिया में हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा कम सा, ओके, एंड इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दैट मच ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो ईजिली उसकी शेप को खराब नहीं कर पाएगा, तो पोलराइजिंग पावर हो जाएगी कम, ठीक है। लास्टली वी हैव द फोर्थ वन विच इज पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली टू द स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये क्या है, ये क्या बोल दिया मैंने, ओके। सो सबसे पहले समझते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या क्या होती हैं। वी हैव वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज़ द नोबल और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, बेसिकली जो होती है NS2Np6। यानी कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विच इज़ व्हाट हमारे नोबल गैसेस के अंदर होते हैं, ठीक है, या फिर NS2 या NS2Np6, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे हमारे वैलेंस शेल के अंदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा है नोबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ओके। अब अगर मैं बात करूँ स्यूडो इनर्ट की, स्यूडो इनर्ट हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमारे 8 या 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है वैलेंस शेल में, बट 18 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड अ स्यूडो। में बेसिकली हमारे जितने भी वैलेंस शेल में सब शेल्स हैं वो सब अपने एक्सटेंड पर फिल्ड हैं, ठीक है। दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड अ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है, इट इज़ हैविंग 29 एज एटॉमिक नंबर, तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9, ठीक है। नाउ आई होप आप सबको पता होगा कि मैं 4s2 और 3d10 क्यों नहीं कर रही हूँ। इफ़ नॉट दैट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई हैव वीडियो जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशंस हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। इफ़ आई विल लिंक दैट ऑल्सो इन दिस डिस्क्रिप्शन, आप इजीली जाके देख लेना। टाइम स्टैम्प भी है वहाँ पे, पूरे 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी होगी, जस्ट वॉच दैट पार्ट जहाँ मैं बताऊंगी कि वाई वी प्रेफर दिस हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब शेल्स। सो वो सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूँ कॉपर +1 की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर दे दिया, तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन एस से चला गया। वी हैव दिस इज माई वैलेंस शेल, ठीक है, जो है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज माई स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, कॉपर +1 की होती है, ठीक है। नॉन इनर्ट वही है जो कि इनर्ट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लियर व्हाट इज योर नोबल, स्यूडो इनर्ट एंड नॉन इनर्ट। नाउ हमारा एज आई सेड पोलराइजिंग पावर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली टू द स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो अगर मैं K+ और कॉपर प्लस को कंपेयर करूंगी, ठीक है। अब दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, दोनों हमारे पास +1 का ही चार्ज है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। नाउ विल कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो इन दोनों में से कॉपर प्लस का ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ हैविंग अ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलराइजेबिलिटी, यानी कि एक एनायन कितना ज़्यादा तैयार है अपनी शेप को खराब करने देने के लिए, ठीक है। दैट इज़ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। जितना ज़्यादा उसकी शेप खराब होती है उतना ज़्यादा वो पोलराइजेबल है। तो पहला वाला फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली टू द साइज ऑफ योर एनायन।
ठीक है। अगर ऑफकोर्स अनायन का साइज बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिसिपेटेड नहीं है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी कम नेगेटिव चार्ज डिसिपेटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव उसको ईजिली ख़राब कर देगा, उसकी शेप को ईजिली ख़राब कर देगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डायरेक्ट टू द साइज। जितना बड़ा साइज होगा हमारे अनायन का उतना ईजिली उसकी शेप पॉजिटिव ख़राब कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज इट इज़ डायरेक्टली टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द अनायन। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हमारे एनायन के ऊपर होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसकी शेप भी खराब होगी। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच बेसिकली आर डिपिक्टिंग योर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लेट्स से N3 माइनस और N2 माइनस की, सो इन दोनों में से दिस इज गोइंग टू बी हैविंग अ हायर पोलराइजेबिलिटी। ओके, तो अब हमने जो भी फैक्टर्स पढ़े हैं अबाउट ऑन विच आर पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर डिपेंड, दे आर ग्रेट एंड आई होप सबको समझ में आएंगे। बहुत आसान है, ठीक है, कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक ऐसा फैक्टर था जो छुप गया था। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर इतना लोगों ने समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और उस पर आ गया हमारा क्वेश्चन, विच इज एब्सेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस, ये ना एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आ गया क्वेश्चन, और ये कैसे हमें फ़र्क पड़ता है ऑन पोलराइजेशन, दैट इज़ व्हाट द मेन क्वेश्चन इज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ FeCl3 या और FeCl3 0.6H2O की, ठीक है, ये दोनों हमारे फेरिक क्लोराइड है और इस एक में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एक में नहीं है। ना इन दोनों में से मैक्सिमम पोलराइजेशन किस में होगी? अब तुम खुद सोचो यार, यहाँ पे भी Fe जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ओनली गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है। बट यहाँ पे ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसको हाइड्रेट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव चार्ज पहले से डिसिपेट हो चुका है, विच मीन्स FeCl3 जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी कायम है अच्छे से +3 वाला, दैट इज़ वेयर हमारा मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी। सो पोलराइजेशन is proportional to absence of water of crystallization। ये मैंने इसलिए भी बताया बिकॉज द टेस्ट लिंक विच आई हैव गिवन डाउन इन माई वीडियो, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज ऑलरेडी सेड बाय मिस्टर के फजान, दैट जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ये कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज कोवैलेंट कैरेक्टर? इट इज़ नथिंग बट 4 थिंग्स। मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूँ कोवैलेंट और आयनिक की, आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और हमारा कोवैलेंट का कम रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा पोलराइजेशन बढ़ेगी, ठीक है, पोलराइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा रिड्यूस, बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो सेम होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक आयनिक कंपाउंड्स वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, और हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगी कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी भी हमारा पानी में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। वी नो दैट आयनिक बॉन्ड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ योर आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो जैसे हमारा पोलराइजेशन बढ़ेगी वैसे हमारा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और हमारा थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी रिड्यूस। वैसे जो थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लैटिस एनर्जी, जिसको हम लोग नेक्स्ट और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू कैन आस्क मी एज अ क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू लाइक सो, ठीक है। बट अब हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं टू एंड दिस वीडियो, सो दैट तुम भी कुछ मेहनत करो, कोई टेस्ट वेस्ट दो यार, ठीक है। और राइट, सो द क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू टॉक अबाउट NaF, काफ़ी दूर हो गया ना, पास कर देते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, इन चारों सॉल्ट्स में से आई हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मुझे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब मेरे हिसाब से चारों के चारों मेरे आयनिक हैं बिकॉज एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ दीज 4 आर आयनिक कंपाउंड्स। बट सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए आई शुड नो कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, जिसके कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा
वो बेसिकली कम सॉल्युबल होगा बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, सबको पता है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इन सब में, तो इन सब में कैटायन तो मेरा सेम है, Na, तो ऑफकोर्स ये कंपेयर मैं नहीं करने वाली बिकॉज ये हमारा कॉन्स्टेंट फैक्टर है। अगर मैं कैटायन हमारा एनायन की तरफ देखूंगी, ओके, सो आई विल सी कि हमारा फ्लोरीन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, विच बेसिकली मीन्स अगर मैं साइजेस को कंपेयर करूँ तो फ्लोरीन छोटा सा होता है, क्लोराइड बड़ा होता है, ब्रोमाइड और भी बड़ा होता है, आयोडाइड सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो एज अगर मैं थोड़ा सा याद करूँ तो एनायन का क्या फैक्टर था, एनायन का था पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर तो कैटायन की होती है और कैटायन हम यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, जितना बड़ा हमारा साइज होगा उतना ज़्यादा वो पोलराइजेबल होगा, उतना ज़्यादा आपका पोलराइजेशन उसके अंदर होगी, और पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी रिड्यूस। सो दिस सोडियम आयोडाइड, ओके, इज गोइंग टू बी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी कि सोडियम आयोडाइड इज गोइंग टू बी द लीस्ट सॉल्युबल, क्योंकि मैक्सिमम उसके अंदर पोलराइजेशन है, उसके अंदर मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम, और NaF इज गोइंग टू बी मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है। सो आई होप वी आर डन विद दिस टॉपिक, आई होप वी अग्री विद व्हाट ऑल वी हैव डन इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग which we don't match on, you can comment that down below, whatever you like to do. If you want to answer it on the Google form, that's also most welcome, okay. So thank you so much for watching. If you like the video, you guys know the drill already, come on, like the video, subscribe if you haven't already, and thank you so much and stay tuned for more.